Hello students, today we are going to discuss the intro of your third chapter playing with numbers. Okay, so let's start. So factors and multiples. इस चैप्टर में आप सबसे ज़्यादा फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में ही पढ़ोगे एंड दैट्स वेयर दिस चैप्टर स्टार्ट्स. So let's understand factors and multiples with an example. Let's suppose we have 10. Okay, so we can write 10 as 2 into 5, right? So 2 into 5 are the factors of 10. Okay, but 10 is a multiple of 2 and 5 because 10 is ahead of 2 and 5. When we multiply 5 with 2 or 2 with 5, we get 10. Okay, so 10 is multiple and 2 and 5 are the factor of 10. Okay, so let's discuss some facts about multiple and factor. 1 is a factor of every number. You must understand that 1 is factor for every number. Okay, you can multiply 15 ones are 15, 2 ones are 2. Okay, so 1 is always a factor of any number. Second, every number is a factor of itself. So कोई भी नंबर होगा वो अपना एक फैक्टर होगा. Okay, let's suppose there is a number 13. We can write 13 as 1 into 13. Okay, so 1 and 13 is a factor of 13. No other number can be factor for 13. Okay, so 13 itself is a factor of 13. Okay, the number 1 has only one factor and that is 1 itself. So 1 has only one factor, that is 1 itself. Okay, every factor of a given number is less than or equal to a given number. So whatever the factor is always a less than or equal to the given number. As I said, if I have 13, okay, so 1 and 13 are the factor of 13. So 1 is a less than 13 and 13 is equals to 13. Okay, so these two numbers less and equal to the given number. Okay, so factors are always less than or equal to the given number. Number of factor of any number is fixed or finite. So फैक्टर्स जितने भी होंगे वो फिक्स होंगे. अगर 10 के फैक्टर्स हैं तो 10 के फैक्टर्स 2 इंटू 5 और वी कैन से दे 1 इंटू 2 इंटू 5 3 फैक्टर्स हैं और 10 वी कैन राइट हियर. ओके, सो फिक्स होंगे, इधर दे विल बी 4 5. ओके, सो फाइनाइट होंगे. अ नंबर विच इज अ सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर other than itself is called a perfect number. A number which is a sum of all its factor. So कुछ नंबर हमारे पास ऐसे होते हैं जो अपने ही फैक्टर्स के सम के जितना होता है. ओके, लाइक हियर 6 के फैक्टर हैं 1 इंटू 2 इंटू 3. सो इफ दीज आर द फैक्टर्स देन when we add 1 2 and 3 it gives us 6. That means 6 is a perfect number. Okay, next, a number which is exactly divisible by a given number is called itself multiple. Okay, so कोई भी नंबर है अगर वो किसी नंबर से डिविजिबल हो जाता है completely तो वो मल्टीपल होता है. ओके, लाइक इफ 6 इज डिविजिबल बाय 2 तो क्वेश्चन में हमारे पास 3 आ जाएगा एंड रिमाइंडर 0. That means 6 is a multiple of 2 because when we multiply 3 with 2 it gives us 6. Okay, so 6 is a multiple of 2. A number is divisible by another number if on dividing the remainder is 0. अगर हम डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है तो उसका मतलब होता है कि नंबर डिविजिबल है गिवन नंबर से. ओके, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. कोई भी नंबर होता है वो अपना मल्टीपल होता है. लाइक हियर 1 इंटू 13. सो 13 इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. ओके, बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग 1 विद इट. नाउ नेक्स्ट वी हैव नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज इनफाइनाइट. जैसे फैक्टर फाइनाइट होते हैं मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं. ओके, बिकॉज अगर मैं कोई भी नंबर लेती हूँ 3 तो 3 के मल्टीपल इनफाइनाइट होंगे, यानी कि बहुत सारे हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि 3 के साथ हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके इसके मल्टीपल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर. अब फैक्टर में हमारे पास क्या था, फैक्टर्स ऑलवेज
लेस देन और इक्वल टू होते हैं गिवन नंबर के, बट मल्टीपल्स ग्रेटर देन और इक्वल टू होते हैं. ओके, बिकॉज अ नंबर कैन बी मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, number 1, and then when we multiply other number with it, it gets bigger than itself. Okay, prime numbers. So prime number क्या होते हैं? A number other than 1 with exactly 2 factors 1 and the number itself is a prime number. एक को छोड़ करके, ओके, अगर हम एक को कंसिडर नहीं करें तो वो नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 एंड दूसरा वो नंबर खुद. ओके, सो वो नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर. जैसे कि 13. ओके, सो 13 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 2, 1 इंटू 13. एक फैक्टर हो गया 1 एंड 13 जो ये नंबर खुद था. ओके, सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल 2 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज 1 and 2 are the factors of 2. In both the number, one factor is 1 and other factor is 2 itself. Okay, similarly 3 into 1, 19, 1 into 19. Okay, so there is no other factors of 19. Two prime numbers whose difference is 2 are called twin primes. Okay, so prime numbers में अगर हम कोई भी 2 नंबर लेते हैं जिनका डिफरेंस 2 है. ओके, सपोज देयर इज नंबर 3 and 5. सो 5 माइनस 3 कितना होगा? 2. डिफरेंस हम बात कर रहे हैं. सो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है. दैट मीन्स ये दोनों नंबर ट्विन प्राइम कहलाएंगे. ओके, दीज 2 नंबर्स आर ट्विन प्राइम. सो सिमिलरली the examples are 5 and 7, 11 and 13 are twin prime. Okay, next we have composite numbers. So composite number क्या होता है? Number that have more than 2 factors are called composite numbers. So वो नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो composite नंबर होते हैं. इसका मतलब हमारे पास 2 टाइप के नंबर होते हैं, एक composite, एक प्राइम नंबर. ओके, सो प्राइम नंबर में हमारे पास 2 फैक्टर्स होते हैं और कंपोजिट नंबर में हमारे पास मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं. लाइक हियर 4 के कितने फैक्टर हैं? 1, 2 इंटू 2. ओके, सो 4 इज अ कंपोजिट नंबर. ओके, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. सो इट इज अ नोटेबल पॉइंट दैट 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. सो फर्स्ट जो नंबर होता है 1 वो प्राइम और कंपोजिट दोनों ही नहीं होता है. इट इज कॉल्ड अ शूडो प्राइम नंबर. इस नंबर को हम क्या कहते हैं? शूडो प्राइम नंबर. शूडो प्राइम नंबर कौन सा है? 1. 2 नंबर विद ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स. को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिसका केवल एक कॉमन फैक्टर होता है. कोई भी 2 नंबर जिनका केवल 1 एज अ कॉमन फैक्टर होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल 9 के फैक्टर्स हमारे पास है 1 इंटू 3 इंटू 3. ओके, एंड 11 के फैक्टर्स हैं 1 इंटू 11. सो यहाँ पर हमारे पास फैक्टर्स में केवल कॉमन दोनों में 1 है. ओके, कॉमन फैक्टर इज 1. सो 9 and 11 आर को प्राइम नंबर्स. ओके, सो स्टूडेंट्स यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दीज पॉइंट्स और नोट डाउन इट इन योर नोटबुक सो दैट यू कैन रिमेंबर दैम. नेक्स्ट वी हैव डिविजिबिलिटी टेस्ट. सो आपके टेक्स्ट बुक में जिन नंबर्स की डिविजिबिलिटी टेस्ट दिया है हम केवल वही पढ़ेंगे. सो स्टार्ट विथ 2. ओके, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0 और 2 और 4 और 6 और 8. यानी कि आपको इवन नंबर पता है. इवन नंबर क्या होते हैं? जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आते हैं वो हमारे इवन नंबर होते हैं. ओके, एंड इफ देयर इज अ नंबर, ओके, जिनके लास्ट में जिनकी यूनिट प्लेस पे क्या है? इवन नंबर्स आते हैं, वो 2 से डिविजिबल होते हैं. ओके, 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं. लाइक हियर 28 इज एन एग्जाम्पल. यहाँ पर हमारे पास यूनिट प्लेस में 8 है विच इज एन इवन नंबर. सो दिस नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 2 completely. Okay, so this is divisible by 2. 320, we have 0 as in unit place, so it is also a divisible by 2. By 3, a number is divisible by 3 if sum of its digits is a multiple of 3. कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल होता है अगर उसके डिजिट्स का सम
3 का मल्टीपल हो। ओके, 3 का मल्टीपल यानी कि 3 2 6, 3 3 9, इस तरीके के नंबर हो तो वो डिविजिबल होता है। यानी कि इफ़ आई टेक एग्जाम्पल एज 240, सो लेट्स सम अप दीज नंबर्स। सो 2 + 1 + 4, इन तीनों का सम हमारे पास आता है 7। ओके, इन तीनों नंबर्स का सम है 7। सो 7 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, राइट? बिकॉज 3 2 6, 3 3 9, so 7 is not multiple of 3, so this is not divisible by 3. Okay, that means 214 3 से डिवाइड नहीं होगा, right? Next, if we take example as 312, so let's sum up these digits. 3 + 1 + 2, so 3 + 1 is 4 + 2 is 6, so 6 is divisible by 3 or 6 is a multiple of 3, so 312 is divisible by 3. Okay, so this is how we find the divisibility by 3. So next we have divisibility by 4. So if the last two digits of a number are divisible by 4, then that number is a multiple of 4 and is divisible by 4. So students, कोई भी नंबर है उसके लास्ट के 2 डिजिट्स चेक करते हैं। ओके, अगर वो लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है, दैट मीन्स वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल 2504. Okay, in this number let's check these 2 digits from last. So 04 को अगर 4 से डिवाइड करें, सो रिमाइंडर हमारे पास आ जाता है 0. ओके, दैट मीन्स 4 1 4, 0 एज रिमाइंडर। ओके, दैट मीन्स अगर ये 2 डिजिट्स 4 से डिवाइडेड हैं, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। सो 2504 is divisible by 4 and 2504 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 626. ओके, दैट मीन्स ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है 2504 को। ओके, now divisibility by 5. A number is divisible by 5 if its unit digit is either 0 or 5. किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट यानी कि फर्स्ट जो डिजिट होती है फ्रॉम राइट, अगर वो 0 या 5 है तो वो 5 से डेफिनेटली डिविजिबल होगा। जैसे कि 55, 100, 1000, 220, 5305, सो ऑन। ओके, सो जिनके भी लास्ट में 5 या 0 होगा, ओके, दिस डिजिट इज 5 और 0, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। ओके, नाउ डिविजिबिलिटी बाय 6. सो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। ओके, सो ऑब्वियसली 2 3 6 होता है। ओके, सो कोई भी नंबर 6 से तभी डिविजिबल होगा अगर वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 210. ओके, सो 210 को देखते हैं क्या ये 2 और 3 से डिविजिबल है। सो फॉर 2 इट इज़ एन इवन नंबर। ओके, इवन नंबर है बिकॉज इसकी फर्स्ट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट जो है वो है इवन, सो डिविजिबल बाय 2. ओके, नाउ फॉर 3, 2 + 1 + 0 is equals to 3. So 3 is a multiple of 3. Okay, so it is also divisible by 3. Okay, so आपने देखा ये 2 और 3 से divisible है, that means 210 is divisible by 6. Okay, now divisibility by 8. आपके पास 7 नहीं है इस चैप्टर में, तो डायरेक्ट हम 8 पे आते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द लास्ट 3 डिजिट आर
डिविजिबल बाय 8। कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल होगा अगर लास्ट के तीनों डिजिट्स 8 से डिविजिबल होंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी हैव, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं 2888। ओके, सो इसमें हम लास्ट की ये 3 डिजिट को चेक करेंगे। अगर ये 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है दैट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। सो ऑब्वियसली वी कैन सी हियर दैट 888 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो ये 111 टाइम्स जाएगा। ओके, और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा। दैट मीन्स ये कम्प्लीटली इसको डिवाइड करता है। सो 8 डिवाइड्स 2888 completely. Okay, so 8 divides this number completely. Okay, by 9, अब 9 से डिविजिबिलिटी देखते हैं। A number is divisible by 9 if the sum of its digit is divisible by 9। जैसे हम 3 के लिए चेक करते थे 9 के लिए भी वैसे ही चेक करेंगे। अगर कोई भी नंबर है उसको 9 से डिविजिबल चेक करना है तो क्या करेंगे, उसके सारे डिजिट्स का सम करके देखेंगे, और अगर सम 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। सो फॉर एग्जाम्पल वी टेक 81,252। ओके, सो अगर ये हमारे पास नंबर है और मुझे चेक करना है कि मैं इसको 9 से डिवाइड कर सकती हूँ या नहीं, यानी कि ये 9 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा या नहीं। सो क्या करेंगे, एड दम अप 8 + 1 + 2 + 5 + 2। ओके, हमने इस सारे डिजिट को ऐड कर दिया है, और ऐड करने के बाद हमारे पास इसका जो सम आएगा वो है 18। ओके, नाउ 18 को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स। ओके, यानी कि रिमाइंडर जो आएगा वो 0 होगा। दैट मीन्स 81,252 is divisible by 9. Okay, by 10, a number is divisible by 10 if its unit digit is 0। so कोई भी नंबर है जिसकी लास्ट में 0 आ रहा है वो 10 से डिविजिबल होगा, जैसे कि 10, 20, 50, 10,000 एंड 5,230 सो ऑन। तो लास्ट में हमारे पास 0 है। ओके, दैट मीन्स ये नंबर 10 से डिवाइड हो जाएंगे। ओके, नाउ डिविजिबिलिटी बाय 11। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट्स ऑल्टरनेट डिजिट्स इज ईदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। सो कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा जब ऑल्टरनेट डिजिट्स जो होंगी उनके जो सम का डिफरेंस आएगा वो 0 या 11 हो। लेट्स अंडरस्टैंडिंग इट बाय एन एग्जाम्पल दैट इज 9,317। ओके, सो ये कोई एग्जाम्पल है 9,317। सो मुझे क्या करना है, चेक करना है इसकी डिविजिबिलिटी 11 से। सो मैं क्या करूँगी, ऑल्टरनेट डिजिट्स क्या होती हैं, एक को छोड़ के। ओके, जैसे ये 7 है, 7 के बाद मैं थर्ड डिजिट लूँगी दैट इज़ 3। ओके, सो 3 + 7 एंड इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है मुझे इन दोनों डिजिट्स के साथ 1 एंड 9। 1 सेकेंड डिजिट है और इसका ऑल्टरनेट है 9। सो 9 + 1। ओके, तो इन दोनों का सम हमारे पास क्या आया, 7 + 3 is 10 एंड इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है 9 + 1 10 से। डिफरेंस यानी कि मैंने ये वाला सिंबल लगाया है डिफरेंस के लिए, इट इज़ अ कर्ली सिंबल। ओके, सो इसका मतलब होता है कि जो भी बड़ा नंबर है हमें उससे छोटे नंबर को माइनस करना है। सो अभी तो हमारे पास दोनों इक्वल नंबर है, सो 10 से 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। ओके, दैट मीन्स ये हमारे पास 0 आंसर आ गया है। इसका मतलब है ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल होगा। अगर सपोज ये डिफरेंस हमारे पास 11 का मल्टीपल होता तो भी ये क्या होता, डिविजिबल होता ये नंबर 11 से। ओके, सो 9,317 इज डिविजिबल बाय 11। ओके, बाय 12
अभी हमें 12 का चेक करना है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 एंड 4। एज वी कैन सी 3 एंड 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 12 हमारे पास प्रोडक्ट देता है। तो अगर हमें 12 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमें चेक करना होगा 3 और 4 से अगर वो कोई नंबर डिविजिबल है तो वो 12 से भी होगा, यानी कि इन दोनों ही नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2568। ओके, सो सबसे पहले हम 3 के लिए चेक करेंगे। फॉर 3 क्या करेंगे, 3 से चेक करने के लिए हम सम कर देते हैं 2 + 5 + 6 + 8। ओके, और इनका सम हमारे पास जो आया है वो है 21। ओके, सो 21 इज डिविजिबल बाय 3। ओके, ये कम्प्लीटली डिविजिबल है 21 बाय 3, सो दैट मीन्स ये 3 के लिए तो करेक्ट है। ओके, नाउ 4 से चेक करेंगे तो 4 से चेक करने के लिए हम 68 यानी कि लास्ट के 2 डिजिट्स को चेक करेंगे। 68 को देखेंगे क्या ये 4 से डिविजिबल है। सो इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं। सो वी हैव आंसर 17। ओके, सो 17 4 ज़ा 68। दैट मीन्स 4 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो 4 के लिए भी ये डिविजिबल है। दैट मीन्स 2568 इज divisible by 12. Okay, now let's check by 15. A number is divisible by 15 if it is divisible by both 3 and 5. See, हम देख सकते हैं हमारे पास अगर कोई भी ऐसे नंबर आ रहे हैं जो किन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट है तो हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं, उन दोनों नंबर के, यानी कि जो जैसे 15 के फैक्टर्स हैं 3 और 5। ओके, सो अगर 3 और 5 से डिविजिबल है तो दैट मीन्स 15 से भी डिविजिबल होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल 615। ओके, 615 को चेक करेंगे क्या ये 15 से डिविजिबल है या नहीं। सो सबसे पहले हम 3 से चेक करेंगे। सो 3 के लिए क्या होगा, 6 + 1 + 5, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। ओके, so 12 is divisible by 3, that means this is correct for 3. Now 5 से चेक करेंगे तो लास्ट में हमारे पास यूनिट प्लेस पे 5 है, दैट मीन्स ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। सो यूनिट डिजिट इज 5, सो दैट मीन्स 5 से भी ये डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। सो इसका मतलब है 3 × 5 = 15 will divide 615 completely. Okay, or we can say that 615 is divisible by 15. Okay, now by 16, a number is divisible by 16 if the number formed by its last 4 digit is divisible by 16. Okay, तो 16 से डिविजिबिलिटी चेक कैसे करेंगे, डिजिट्स को हम चेक करेंगे। अगर लास्ट के 4 डिजिट्स 16 से डिविजिबल हैं दैट मीन्स पूरा का पूरा नंबर 16 से डिविजिबल होगा। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव 78,52,176। ओके, सो अगर हमें ये नंबर चेक करना है 16 के लिए तो हमें लास्ट की 4 डिजिट्स को चेक करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 2176। अब ये 16 से डिविजिबल है। ओके, कैसे, हम इसको 16 से डिवाइड करके देखेंगे और ये हमारे पास क्या होगा, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 16 से। सो दिस इज डिवाइडेड कम्प्लीटली बाय 16, दैट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाय 16। ओके, सो बेसिकली जब 16 का डिविजिबिलिटी हम बहुत रेयरली यूज़ करते हैं क्योंकि 16 हमारे पास बहुत बड़ी डिजिट्स को चेक करने के लिए यूज़फुल होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन। आप चाहो तो इसके जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और नोट्स मैंने मेंशन किए हैं वीडियो में, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो अपने नोटबुक में। एंड नेक्स्ट हम इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो टिल देन यू कैन प्रैक्टिस द examples from your NCERT book. So keep practicing and take care.